Assalamu alaikum, everyone. This is Abdur Rehman Khattak once again with another live session with yet another very special guest. And today we have a very interesting topic to talk about. And today we will discuss on miscommunication at workplace, which is very important. And the guest that I have today, let me introduce her. She is a training and development professional. She's been working with the training industry for a long time now. And now she's working as a director customer experience with Trainers Tribe. She's also a certified trainer, a certified coach, and also she is, yeah. So she's basically also a success coach. How could I forget that? So, what a good combination, what a perfect combination. A person who is interested in communication and who's also a certified coach and certified trainer. So, I hope that I'll be able to learn a lot, and so will you. So, thank you so much, Javeria, for your time. Thank you so much for joining us. How are you? Thank you so much, Abdur Rehman. Assalamu alaikum, everyone. Such a pleasure to be here with you on your platform, sharing and learning from here. Thank you so much for having me. Great. Okay. So, I can see that I am not live on my page. Just give me a second and then we will get started. All right. Yes, we are. I just need to make it public. I don't know why it's shown only to me. Okay. So we will get started in a minute and then I will be sharing it with on my page. Here you go. Edit audience and here you go. It goes public. Perfect. All right. So, Javeria, I have so many questions for you, but my first question would naturally be that what is communication at workplace and how is it different from other communications? Why should we give communication at workplace so much importance? Such an important question. We have got a lot of definitions surfing on the internet and from around Mhm, people. If I have to define communication in one single term, I would mhm, say it's shared understanding. It's about connecting with the people through exchange of meaningful ideas and solutions for them. Similarly, okay, workplace communication is a process of exchanging information and ideas between two people or groups within the same organization. For example, we have emails, calls, text messages, and notes, you name it, and we are communicating in the workplace. So, how basically we communicate? There are three classifications mainly, mhm, which are verbally communicating, non-verbally communicating, and in writing. अब जब okay, हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं, दो इट्स ओनली 7% ऑफ द टोटल कम्युनिकेशन, yet it covers very important aspects of the workplace. Presentations, video conferences, phone calls, meetings, one-on-one conversations, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं. right, वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इससे जो रेपो बिल्डिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है दैट इज़ मैचलेस एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. और सबसे true, ज़्यादा अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन के इशू को कम करना हो, सो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप वर्बली कम्युनिकेट करें. mhm, नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई कि कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए. सो ये right, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट इज mm, 93% ऑफ द टोटल कम्युनिकेशन, जिसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, 38% टोन ऑफ वॉइस एंड द इंटोनेशन, द वोकल वैरायटी. अब बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ये सब सपोर्ट करते हैं और बहुत दफ़ा एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी देते हैं ऑफ mm, द मीनिंग यू वांट टू क्रिएट इन योर कम्युनिकेशन. सो वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ mm. यू से इट. How you say it? सो True. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, नॉन वर्बल क्यूज़ के ऊपर उसको अंडरस्टैंड करने में और इम्प्रूव करने पे काम करें. Mm, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन राइटिंग. आप देखिए जनरली हमारे यहाँ ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं.
और कहा जाता है कि जैसे जब आप कुछ लिखते हैं, सो इट्स लाइक यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन. तो अगर True. आप खुद कहीं जाना चाहें तो आप अच्छा सा तैयार होके जाएंगे और यू पुट योर बेस्ट आउट देयर. तो सिमिलरली राइटिंग के अंदर भी हमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग विच इज़ itself 45% ऑफ द कम्युनिकेशन हेयर. राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके पीछे इमोशंस क्या होंगे, हमारी टोन क्या है. राइटिंग के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते और ये बहुत ज़रूरी है कि यू गेट योर पॉइंट अक्रॉस अप्रोप्रिएटली बिकॉज उसमें टोन मिसिंग होती है. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पंक्चुएशन यूज़ करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्लीज़ ना करें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें रिव्यू करने के लिए कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या आप शेयर करना चाहते हैं. और एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ शेयर करूँगी. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जब हम देखते हैं रीडिंग में या कहीं विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर, सो उसका मतलब होता है कि इट शोज एक्साइटमेंट और एट टाइम्स सरप्राइज. बट रिटन कम्युनिकेशन में समटाइम्स इट्स इंटरप्रेटेड एज द अदर पर्सन इज बीइंग एग्रेसिव और प्रॉब्ली Yes. येलिंग एट. Hmm. सो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इन सब कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ आवर मैसेज एंड व्हाट इज़ द बेस्ट मीडियम टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस टू द रीडर. अगर आपने एक फॉलो अप ईमेल करनी है किसी वॉइस मेल के लिए, किसी मीटिंग या डिस्कशन के लिए आपने फॉलो अप करना है जिसमें 2-3 पार्टीज या ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, इफ़ यू नीड टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली एंड स्टेप बाय स्टेप टू योर टीम or to someone, if you want to provide a status update on your project, or if you want to thank someone publicly and formally, written communication is the best medium. So this is all about the basic types. अब जब हम particularly workplace communication की बात करते हैं, so हमें ये understand करना है कि it's different from informal communication. जो workplace communication है ये formal है, official है. It's where you are communicating, being a manager, like you're communicating with the top management, your clients, your stakeholders. You're giving specific information to your team, और even follow up emails के अंदर भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है. बहुत सारे इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशंस तब होती हैं जब आपने इनफॉर्मली कम्युनिकेट किया होता है कुछ टीम में और वो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंटली अराइज हो जाती हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की एग्जांपल ये है कि यू आर लाइक कम्युनिकेटिंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें कोई बिजनेस हिरार्की इन्वॉल्व नहीं है एंड इट्स लाइक अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन बिटवीन कोवर्कर्स. अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन को देखें, सो इसमें दो तरह के लेवल्स हैं. If we are talking about the same hierarchical level where the teams and the people, groups and individuals, departments are communicating, that is horizontal communication. Right. And if, for example, you being a manager are talking, communicating to your boss, or likewise, that is vertical communication. क्योंकि यहाँ पे एक different hierarchical level है. I'm So, sorry, जवेरिया, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हमने स्टार्ट की थी कि रिटन जी, कम्युनिकेशन में जब ईमेल्स में जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको हम पहले कवर कर लें क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम करते हैं या बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि बहुत सारी चीज़ें जो कि फॉर्मली बहुत गलत समझी जाती हैं, जैसे कि कैपिटलाइज्ड वर्ड्स में लिखना. तो ऐसी बिल्कुल. चीज़ों को मेरा ख्याल है हम पहले कवर कर लें ताकि एक जनरल आइडिया बिल्ड हो जाए कि जो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, प्लस वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, तो वील स्टिक टू Yeah, दैट. ठीक है. तो लाइक यू सेड, और फिर वी विल कंटिन्यू विद द वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल. सॉरी आई इंटरप्टेड. सो कैन वी टॉक अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन? मेनी पीपल स्ट्रगल विद दैट. उनको ईमेल्स में जो राइटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. तो व्हाट डू यू एडवाइस, और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने ऑब्जर्व की हो बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग विद मेनी इंडस्ट्रीज, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप रिकमेंड करती हैं जो लोगों को करनी चाहिए टू क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट? श्योर. देखिए, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कि जब हम ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको फॉर्मल रखें, येट इट शुड बी प्रिसाइज. बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक छोटी सी चीज़ के लिए एक बहुत लंबी ईमेल कर देते हैं और फिर उसका एक नॉवल बैक रिप्लाई आ जाता है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट. अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मोर देन 25% ऑफ द टाइम employees spend on their work
is basically on email communication, और 60% से ज़्यादा communication हम receive कर रहे होते हैं emails की form में, और बहुत सारी information that actually gets lost, which is important. Hmm. तो Right. prioritize करना बहुत ज़रूरी है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो हम ये अंडरस्टैंड करें कि टू द पॉइंट और प्रिसाइज इसको कैसे रखना है. आप कम अल्फाज में अपनी बात को ज़्यादा कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया, पंक्चुएशन जो है, जो राइट पॉजेज हैं, सिंपल वर्ड्स हैं, वो आपका एक ज़्यादा क्लियरर मीनिंग देते हैं. द पर्पस इज़ टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग, टू गेट योर Hmm. पॉइंट अक्रॉस, नॉट टू Hmm. राइट स्टोरीज इन द ईमेल. Hmm. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप इन पर्सन डिस्कस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक 15 मिनट की मीटिंग के अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई इशू रिजॉल्व हो सकता है, तो दैट इज़ फार बेटर देन द होल डे ऑफ राइटिंग ईमेल्स. एंड Right. वो एक एंजाइटी इंड्यूसिंग भी होता है पूरा दिन Hmm. ईमेल्स को. सो आई थिंक इसको 9% इसलिए कम्युनिकेशन में एक प्लेस मिली है बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से मीडियम को आपने कौन सी बात करने के लिए यूज़ करना है. सो True. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने जो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है उसको देखें, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, बहुत लंबे सेंटेंसेस ना लिखें. और जो आपके पॉइंट्स हैं, जैसे हम आउटलाइन बनाते हैं, इस तरह से Hmm. आउटलाइन के अकॉर्डिंगली आप उसको लेके चलें. और Right. सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, अच्छी पंक्चुएशन, राइट पॉजेज यूज़ करें. Hmm. बहुत ज़्यादा जैसे उसके अंदर इमोजीज और इस तरह की चीज़ें जो ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आती. Hmm. टेक्निकल जार्गन्स या स्लैंग्स जो हम यूज़ करते हैं या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, Hmm. प्लीज़ को हम पीएलएस लिख देते हैं, सो दैट इज़ Hmm. नॉट फॉर्मल. हमें चाहिए कि Absolutely. हम उसको फॉर्मली प्रॉपर एक फॉर्मेशन के साथ उसको हम Hmm. लिखें और शेयर करें. और ये टाइम थोड़ा सा ज़रूर निकालें कि आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें. सबसे Absolutely. इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर एस्पेक्ट है वो ये है कि इफ़ यू वर द रीडर, व्हाट वुड यू लाइक Hmm. टू रीड, हाउ वुड यू लाइक टू Right. गेट द इंफॉर्मेशन. सो ये Hmm. चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. इसको नज़र में Right. रख के फिर आपने अपनी कम्युनिकेशन को इन राइटिंग लिखना होता है. एग्जैक्टली exactly. और सोचिए कैसा इम्प्रेशन पड़ेगा अगर आपने जो आपका एड्रेसी है उसके नेम के स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए हों, या आपने कोई इमोशन या शो करने के लिए सारा अपना सेंटेंस कैपिटलाइज कर दिया, लाइक यू आर येलिंग एट द पर्सन हु इज रिसीविंग योर या ईमेल. तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक. थैंक यू सो मच. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. अच्छा ये बताइए, लेट्स टॉक अबाउट the importance of communication at workplace. How do you think businesses would be affected if the communication becomes better or if it goes worse? So सबसे पहले हम ये determine कर लेते हैं, define कर लेते हैं कि क्या communication workplace पे, especially industry में important है या नहीं और कितनी important है. I think if we talk about the role of effective communication in the workplace, everyone in the organization has the role to play in effective communication. Absolutely. CEOs and senior managers, they are ultimately responsible for setting the right tone in the organization and establishing an organizational culture, जो कि बहुत ज़रूरी है. True. जो हमारे की लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनको कोच भी किया जाता है कि वो कंपनी वाइड जो कम्युनिकेशन होती है उसको इंश्योर करें. इसी तरह से एचआर प्रोफेशनल्स का रोल बहुत क्रिटिकल है बिकॉज दे वर्क एज कम्युनिकेशन लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ऐसे चैलेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स जिनमें उनकी कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल होती है, जैसे 2019 में था हमारी वर्क प्लेस में, इवन इन 2020 विद द पेंडेमिक पैराडाइम शिफ्ट. सो Yeah. ये चीज़ें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी हैं. Managers, most importantly, are responsible for the daily communication with their employees, and they have to relate it to the peer and the colleagues. It says that Harvard Business Review का start में देख रही थी, it was very interesting that 69% of managers are uncomfortable communicating with their employees, and Hmm. 37% of the managers are uncomfortable having to give the direct feedback to the employees on their performance, इस डर से कि negative feedback आएगा या कोई issue हो जाएगा. So I Right. think every employee in the organization has a responsibility to voice their concerns, to discuss their Absolutely. issues, to Hmm. provide and receive feedback, and to listen effectively. Hmm. Listening itself एक बहुत important communication skill है. जितना आप सुन के सीखते हैं उतना आप बात करते हुए नहीं सीख सकते. So Right. consequence क्या होगा अगर communication आपकी effective नहीं है? आपके stress levels employees के बहुत ज़्यादा होंगे. 52% of the employees say that they feel higher stress level at work because of ineffective communication. Hmm. 44% managers say that they were unable to complete the projects. They failed at it. Hmm. 31 said
that they were missing out on important performance goals. और mm, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि 18% ऑफ द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज से दैट दे लॉस्ट न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटी with 20% decrease in creating innovation. सो इससे okay, हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितना mm, ज़रूरी है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो पार्ट एंड पार्सल हैं इन क्रिएटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस, जैसे कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप डिसीजन मेकिंग में अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं, दे नो दैट दे आर बीइंग हर्ड, दे फील वैल्यूड एंड एम्पावर्ड. आपको एक गोल ओरिएंटेड डिस्कशन फैसिलिटेट करने का मौका मिलता है, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ यू हेल्प द टीम टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सक्सेस. और चूंकि आप उस वक्त राइट देयर एंड देन यू आर इन द सिचुएशन, कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो तो आप उसको वहीं पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके प्रॉब्लम सॉल्विंग की mm. तरफ जा सकते हैं. Exactly. इसी Okay, you तरह से talked about Javeria, I'm sorry. जी. You talked about feedback, and you said that managers are not comfortable giving feedback to the subordinates or the team. Could it be could it be because they were not trained on how to give feedback? So, how important, because we are talking about communication, and miscommunication happens when managers don't know how to give effective feedback. So, what do you think should happen to train not only the subordinates, the team, but also the managers and CEOs how to give effective feedback? And what can coaches Yeah. like you do to help them learn the art of giving feedback? Feedback is very important. It's the core of communication. Because Very. अगर आप फीडबैक को सिर्फ ये समझते हैं कि आपने बात कह दी, तो Mm, ये दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी. It's very important that you listen actively and mm, you give feedback and you also receive feedback. ये ऐसे ही है कि जैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन को सुनने के बाद, दैट हाउ यू कैन बेटर वर्क ऑन दैट. फीडबैक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ की, बिकॉज इससे आप इम्प्रूव करते हैं अपनी सिचुएशन, अपने जो भी आपके प्रोसेसेस हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है. ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होती है उसको अंडरस्टैंड किया जाए इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और फीडबैक आप कैसे दे सकते हैं, ऑब्वियसली जब आप एक सही मीडियम का तयन करते हैं कि आपने कौन सा मीडियम चूज mm. करना है, किस तरह की बात आपने किसको कहनी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम टॉकिंग टू योर कोवर्कर्स. और Absolutely. फीडबैक को आपने कैसे जो है वो रिसीव करना है, कैसे आपने किसी को फीडबैक देना है, ऑब्वियसली ये कमेंडेशन और रिकमेंडेशंस का एक कॉम्बिनेशन होता है. अगर Mm, क्रिटिकल फीडबैक भी दे रहे हैं तो उसके अंदर आप अप्रिशिएट करें द एफर्ट्स mm, द एम्प्लॉय और द मैनेजर इज बीन मेकिंग, एंड देन उसके बाद आप उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं. इसकी एक सैंडविच अप्रोच होती है yes. फीडबैक की, जिसको हम कहते हैं. सो उसमें Mm, यही है कि जैसे आप एक बड़ा अच्छा लेयर्ड सैंडविच बनाते हैं, इसी mm, तरह से आपने कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर फीडबैक देना होता है. कि आप mm, पहले जो किसी भी मैनेजर की या किसी भी आपके सबॉर्डिनेट की जो अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं, जो स्किल सेट है, उसको आप पहले अप्रिशिएट करें, और उसके बाद फिर आप वो चीज़ें उन पे फोकस करें जो आपने इम्प्रूव करनी है. सो दैट इज़ mm, हाउ वो डिफेंसिव नहीं होते फिर, और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा, दिस इज़ द एरिया वे वी नीड टू वर्क ऑन. सो फीडबैक को absolutely. हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रखना चाहिए. अगर आपने कोई बहुत एक ज़रूरी बात कहनी है जो बहुत क्रिटिकल भी है, और वो सुन के प्रॉब्ली कोई ऑफेंड भी हो जाएगा, तो कोशिश यही करनी चाहिए, कीप इट सिंपल, ब्रीथ थ्रू बिफोर यू Mm, स्टार्ट कॉन्वर्सेटिंग. mm, और उसके mm, बाद फिर आप एक अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर, नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट के अंदर आप वो mm, फीडबैक दें और इनकरेज भी करें कि वो उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें. mm. Okay, very good points. And I thought that feedback was very important. That's why I interrupted and brought it up. Okay, now या. let's talk about some of the issues that can result into a miscommunication. What happens? How does it start, and when does it start? Uh, you know, then it leads to miscommunication. So, what actually happens during daily processes in any industry, any workplace, that results into miscommunication?
सबसे पहले तो मिसकम्युनिकेशन से पहले हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि वो क्या एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन या इनएफिशिएंसी टू डू सो, दैट रिजल्ट्स बेसिकली इन द पुअर कम्युनिकेशन या जो मिसकम्युनिकेशंस हो जाती हैं। The Right. importance is that you get your point across how you intended. तो इसमें intention और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की थी कि आप अपनी एक स्ट्रॉन्गर टीम कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। Mm, ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिजनेस परफॉर्मेंसेस बेहतर होती हैं, आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बिकॉज आप भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो कर रहे हैं। आपका एक स्किल सेट होता है जो आइडेंटिफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उस पर फिर mm, आप काम करते हैं, अलाइन करते हैं उसको विद द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उसकी वजह यह है कि बहुत दफ़ा एम्प्लॉयज़ को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। Clear mm. directions means that there are less misunderstandings. Employees must know exactly that what is expected from each one of them, Absolutely. what steps Mm, need to be taken, and mm, how each employee contributes to achieve the organizational goals. जब उनको mm. अपना रोल पता चलता है तभी वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो जितनी वर्क Absolutely. फ्लो में क्लैरिटी होगी उतना बेहतर होगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आपकी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज होती है और एम्प्लॉय इंगेजमेंट भी इंक्रीज होती है। अगर हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट की बात करते हैं तो हाईली इंगेज टीम्स दे आर बेसिकली 21% मोर engaged in creating greater profitability। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयज़ engaged हों, और वो कैसे engage होंगे जब उनको ये पता होगा कि उनका रोल क्या है, they are satisfied with their work, they are striving their best to perform with the organization। ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी तरह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा हमारे कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, कस्टमर्स को बिल्ड और उनके साथ एक जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन किया जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। Mm, इसी तरह से आपकी बीइंग एन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन बेहतर होती है जब आप को पता होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपसे तमाम चीज़ें कम्युनिकेट करती है टाइमली, एंड mm, लाइकवाइज यू आर वेल इन्फॉर्म्ड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। mm, इसी तरह से इनोवेशन और ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी का फैक्टर है। अम, अगर हम ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो एक जो सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है, ये तभी आता है व्हेन द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड दैट दे आर बीइंग हर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। right. अगर ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी होगी तो 76% ज़्यादा इंगेजमेंट होगी एम्प्लॉयज़ की और Mm, 50% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। सो mm, जब मैनेजमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाती तो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं हो पाता। सो ये बहुत ज़रूरी mm, है कि ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को फोकस किया जाए। mm, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट किया जा सकता है, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कल्चर जिसमें आपकी कमिटेड कोलैबोरेटिव वर्कफोर्स होती है, इंटर डिपार्टमेंटल आपके कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होती है, mm, क्लैरिटी ऑफ पर्पस आपको मिलता है। अ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कह लें या वर्क जो आपका ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से कम्युनिकेशन साइलोज बन जाते हैं। सो mm, उनको ब्रेक करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हेल्प द एम्प्लॉयज टू अलाइन विद द organizational goals, and how you can do it by prioritizing the right information for them so that the mm. information doesn't get lost in that, in the Absolutely. emails or in communicating। So आप सबसे Mm, कम अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको mm, उसके रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं जब आपको mm, ये पता है कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं। बिकॉज देखिए कम्युनिकेशन के अंदर ये ऐसे ही है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना बरहक है, बिकॉज आपकी डिवर्सिटी है, डिफरेंट परसेप्शंस हैं लोगों के। आई एंड यू आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम्स डिफरेंटली एंड सिमिलरली absolutely. फॉर Mm, एवरी वन ऑफ देम। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम रियलाइज करें दैट mm, एवरी वन इज वैल्यूड, एवरी वन इज रिस्पेक्टेड। हम थोड़ा mm, सा फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज करें और ये अंडरस्टैंड करें कि हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। होता क्या है, mm, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से होते हैं, दे कम डाउन टू थ्री थिंग्स: mm. because of misunderstanding or feeling misunderstood, Yeah. unable to understand that how others communicate, or in a situation where you are feeling disregarded, disrespectful, or being taken advantage of। So इन Mm, तमाम चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते हैं।
Okay, So Javeria, you raised a very important point of a big problem at all the workplaces that people think that they are being taken advantage of, like you just said, and yeah, also their job description is not clear. And it is also pointed out by one of the viewers, and she's a very good friend. She is an educationist, Mr. Thamdani. She said JDs are important to be communicated, likewise organizational expectations, and I completely agree with it. But my question to you is, how flexible do you think employees should be in when they're asked to do something which is not a part of their job description? I've heard many managers coming up with this issue that, okay, this was not a part of your JD, but now this has come up, especially in a situation that we are facing pandemic, things are not the same, and people are being asked to do things that were not originally part of their job descriptions, happening everywhere, schools, colleges, universities, workplaces. Now, how flexible should you be when you're being asked to do something which was not originally a part of your job description? And on the other side, coming from the perspective of the employee, um, managers, how understanding should they be if an employee says that, sorry, this is below my job level, or this is not something that I'm being paid for? So from both perspectives, because we work on both levels, we report to people and there are people reporting to us. So would you please share with us how should we take this issue? या पर्टिकुलरली इसमें देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अगर आप एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि एक कम्युनिकेशन हो सुपरवाइज़र्स या आपके जो लीडर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, उनकी अपने टीम मेंबर्स के साथ, उनकी जो अपनी टीम्स हैं उनके साथ, हर एम्प्लॉयी के साथ। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ जब आप कम्युनिकेट करते हैं एज़ अ मैनेजर टू योर टीम मेंबर, यू बेटर अंडरस्टैंड कि आपके एम्प्लॉयी का स्किल सेट क्या है। It's realizing that who is the right person for the right job. सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये है ऑन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड द मैनेजरियल पोजीशंस। अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं और इसको क्रिटिकली भी देख सकते हैं। पॉजिटिवली इन द सेंस दैट हम ये देखिए कि अगर हमें कोई काम ऐसा कहा जा रहा है विच इज़ नॉट इनिशियली पार्ट ऑफ आवर जॉब डिस्क्रिप्शन, बट हाउ दिस इज़ हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव आर Yes. पोजीशन, हमारी जो स्किल्स हैं वो किस तरह एनहांस होंगी किसी प्रोजेक्ट को टेकअप करने से, हम कैसे अपने अपनी पोजीशन को अपनी ग्रोथ को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि गोइंग बियॉन्ड द एक्स्ट्रा माइल्स, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ऐसी चीज़ों को टेकअप करें जो आपको हेल्प करें। But ऑब्वियसली if, I'm जितनी sorry, अच्छी if we are कम्युनिकेशन going the extra mile, Javeria, what या if there is no like promise or incentive with it? So employee या is ready to go the extra mile, okay, and he's doing या the best bit. So please carry on, but we have to focus on how it should be balanced from the management. Please. या इसके अंदर वही बात है कि आपको एक्सपेक्टेशंस का पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एम्प्लॉय से क्या हैं, एंड व्हाट डज द एम्प्लॉय इन रिटर्न एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट गोज हैंड इन हैंड। आप को हर बार इंसेंटिव, हम उसको सिर्फ इंसेंटिव की तरफ फोकस नहीं करते, बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके स्किल सेट को इन्हांस करती हैं, आपको हेल्प करती हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ग्रो करें, बिकॉज वहाँ पे आप एक एसेट बनते हैं एक कंपनी का, से बड़ा ज़रूरी है उस पर काम करना। सो अगर आप आपस में ये डिस्कस कर लें एक मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, उनके मैनेजर्स के, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड हाउ एम्प्लॉयज़ इन टर्न कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। अब वो बेनिफिट्स दोनों तरह के हो सकते हैं, मॉनेटरी भी हो सकते हैं, स्किल सेट के ऊपर बेस्ड भी हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की वजह से पता चलेंगी। Mm, absolutely. Okay, so we were talking about the issues that result into यस, miscommunication, and I think, yeah. इसको मैं क्विकली कवर करूंगी। देखिए बहुत Mm, सारे बैरियर्स होते हैं। हम एक बड़ी वो इंटरेस्टिंग कोटेशन है कि द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन दैट इट हैज टेकन that has प्लेस। taken place, हम ये absolutely. समझते हैं कि बात हो गई है, बट बात तब होती है कि जब आपको रिस्पॉन्स भी उसका मिल रहा होता है। इफ़ यू आर ओनली टॉकिंग दैट इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग। सो बहुत तरह के बैरियर्स जो हैं उनकी वजह से इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फिजिकल लोकेशन के बैरियर्स हैं, जैसे अब रिमोट लोकेशंस पे लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल। लैंग्वेज के बैरियर्स होते हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, परसेप्शन के, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट एंड एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स।
True. जितनी आपकी क्लैरिटी और पर्पस कम होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि मिसकम्युनिकेशन होती है एक कंपनी के अंदर। और डिसएंगेजमेंट होती ही इस वजह से है जब एम्प्लॉयज़ जो हैं दे लूज़ देयर इंटरेस्ट एंड देयर फोकस एट देयर वर्क। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन को प्रॉपरली फ्रेम करें और अपफ्रंट होके हम एक प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर वेल टाइम सिचुएशन के अंदर उसको डिस्कस करें। ऐसे इश्यूज जो आपको लगता है देयर एंड देन रिजॉल्व हो सकते हैं उनको करें। Mm, बहुत दफ़ा लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन हम कहते हैं अच्छा ईमेल कर लेते हैं, तो वही बात कि अगर आप उसको मीटिंग में रिजॉल्व कर सकते हैं 10 मिनट्स में, तो वाई टू वेट फॉर अ डे लॉन्ग ऑफ ईमेलिंग। mm, यहाँ लाहौर में पर्टिकुलरली और हमारी वैसे भी एक जो वर्कफोर्स है पाकिस्तान की, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो मिस आउट कर जाते हैं क्लोजर के ऊपर। mm, या कभी कभार हमारी कम्युनिकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल इफ वी आर कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स, कॉल टू एक्शन मिसिंग होता है। सो ये mm. बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको प्रिसाइज रखें और उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन की तरह से डिस्कस करें। Absolutely. एजम्पशंस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम एज्यूम कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग करते हुए कि अच्छा ये हमारा टाइम सेव होगा तो ये मतलब होगा। Mm, Never ever do that. Assumptions always result in miscommunications, mm, disagreements, misunderstandings leading to conflicts. So mm, आप जितना उसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जितना उसको ओपनली डिस्कस करेंगे, उतना बेहतर होता है। अगर आप जजमेंटल हो जाते हैं, इफ़ यू आर बाइस्ड टूवर्ड्स टेकिंग डिसीजंस, सो वहाँ पे भी आपको इश्यूज आते हैं। एट टाइम्स mm, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एट अ टाइम, आप mm. ओवरलोड करते जाए इन्फॉर्मेशन को, सो जो एक्चुअल Absolutely. पॉइंट है दैट डजंट गेट अक्रॉस। लैक Mm, ऑफ लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू mm. रिप्लाई। Reply. सो True. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम रिस्पॉन्ड करें, ये ना Mm, करें कि हम फौरन से डिफेंसिव हो गए हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक सम mm. टाइम टू सिंक इन दैट इंफॉर्मेशन एंड देन वी रिस्पॉन्ड टू इट। Yes. बहुत दफ़ा आपको ये नहीं पता होता कि सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसिस में क्या हो रहा है। लैक ऑफ नॉलेज और जनरल अवेयरनेस बेसिकली वो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट करती है। अगर Mm, आप अपनी इंफॉर्मेशन में स्पेसिफिक नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत दफ़ा वेगली हम रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं कि ओके कॉल मी एनी टाइम, और आई नीड mm, टू बी यू नो आई नीड इट टू बी क्लोज्ड बाय द क्लोजर mm, ऑफ बिजनेस टुडे, और लेट्स डू इट mm. एट योर कन्वीनियंस। तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता होता, कॉल टू एक्शन मिसिंग है कि आपने Mm. अब वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो ये बहुत Exactly. ज़रूरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेगेटिव Mm, इंस्ट्रक्शंस का। हम mm, हमेशा ये कहते हैं कि अच्छा आप ये ना करें, एज एन एम्प्लॉय हम फीडबैक देते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो डिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं उनके बारे में बात करें, रादर कि हम ये कहें कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा डिफाइंड होता है तो आपको पता होता है कि आपने कैसे उस पर एक्ट करना है। जब प्रॉम्प्टनेस नहीं होगी, जब mm, अर्जेंसी नहीं होगी किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत इश्यूज आते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है। यू हैव टू कम्युनिकेट एट द फर्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। और कन्फ्रंटेशन नहीं इसके अंदर करने की ज़रूरत होती, इसमें ये होता है कि आप आर्गुमेंटेटिव या डिफेंसिव हुए बगैर अपना पॉइंट डिस्कस करें और mm, अप्रोप्रिएट टोन यूज़ करें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी आप कोशिश करें, कॉन्फिडेंट यूज़ करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि जितना आप mm. कैंडिड होंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में, जितना डायरेक्ट होंगे, जितना ओपन ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, उतना ज़रूरी है। अब Absolutely. आपको ये डिफाइन करना है कि आपने किन के साथ ऑनेस्ट होना है। अगर ट्रस्ट का फैक्टर Mm, होगा कम्युनिकेशन में, ऑब्वियसली तब आप ओपनली अपने इश्यूज को डिस्कस कर mm. सकेंगे। सो ये कुछ चीज़ें Absolutely. हैं आई थिंक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं एक वर्क प्लेस सेटिंग के अंदर। Mm. Thank you so much. साथ साथ कमेंट्स भी लेंगे हम. जी। Okay. So, Nusrat Hamdani कह रही हैं, yes, employees should also be trained for any unexpected and contingency situation or plans. I completely agree, absolutely. Guli Zahra Abbas ने join किया. Thank you so much for joining. Now, no manager would ever like to entertain the comment, this wasn't a part of my JD. And it's true. So this is something that where legal matters come into play, and how you should consider your contract and the other factors. So I think we have already discussed it. If it's for your learning and development, I think you should take it. And if it's happening too frequently, I think there should be a point where you should say, no, I think that's enough.
or you should know when to move on and look for another job. But if you think that you're growing as a person, as a professional, then I think there is no harm in taking that a new project or new task. And I completely agree with her. Okay, first to understand, then to be understood. Absolutely, I completely agree. Yes. Okay, so we talked about issues and we also talked about miscommunications and different types of them. Now, let's talk about the skills, the techniques that managers and executives need to have in order to avoid a miscommunication. And if it takes place, a miscommunication has happened, now how to resolve it, how to solve it, how to handle it, how to tackle it. So let's first talk about the things that we can do in our offices, at workplaces, in order to avoid the miscommunication, and then if it takes place, how to resolve it. शो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, एजम्पशंस हम बना लेते हैं और उसके ऊपर जब हम रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसइंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं विच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. अब अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो उसकी जो रूट कॉज है दैट इज़ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आप बहुत दफ़ा मिस्ड डेडलाइंस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करते हैं. सो कुछ Sure. इसके सिंपल स्टेप्स हैं जो आप एज अ प्रोफेशनल एज अ पर्सन आप ले सकते हैं, और कुछ इसके ऐसे स्टेप्स हैं जो आप एज इन इन दी वर्क प्लेस सेटिंग आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जितनी आपकी कम्युनिकेशन ओपन होगी, जितना इंटरेक्शन आप क्रिएट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके इश्यूज कम होते हैं. जैसा मैंने पहले कहा, एजम्पशंस को अवॉइड करें. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस फॉर क्लैरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. हमारे यहाँ सवाल जो है वो बहुत मुश्किल होता है लोगों से पूछना, और एक बहुत डिफरेंट तरीके से उसको देखा जाता है. सो आई थिंक सवाल जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. अब जितनी हम डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने अपनी ईमेल कम्युनिकेशन में डिस्कस किया. बहुत दफ़ा लैक ऑफ टाइम की वजह से हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें गलत कह जाते हैं या वो गलत परसीव हो जाती हैं. सो हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. एक Sure. मिनट निकालें अपने लिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन वर्क ऑन द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन. हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कितनी कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, एंड व्हाट आर द राइट टूल्स वी आर यूटिलाइजिंग फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशन. और हमेशा एक टू वे कम्युनिकेशन को इनकरेज करें, एम्पावर करें एम्प्लॉयज़ को कि वो क्वेश्चंस पूछें, टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू डिस्कस देयर इश्यूज. सो जैसे फीडबैक को भी हमने डिस्कस किया, इट इट गोस द सेम, टू वे होना चाहिए. 4 out of 10 एम्प्लॉयज़ आर एक्टिवली डिसंगेज्ड व्हेन दे गेट लिटिल और नो फीडबैक. सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको स्पेसिफिक और डिस्क्रिप्टिव रखें. हमेशा एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट शो करें. एक टाइमली चेक इन आप स्केड्यूल कर लें, एक शॉर्ट क्विक कॉल स्केड्यूल कर लें अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक एजेंडा के साथ आपने एम्फेसाइज करनी है. It's said that companies with engaged workers generally earn 2.5 times more revenue. सो आप जितना इंगेजमेंट क्रिएट करेंगे अपनी वर्कफोर्स के साथ, उतना कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. अब हम जो उसका दूसरा पार्ट है, जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए एज अ प्रोफेशनल, वो ये है कि वी नीड टू मैच द मैसेज टू द मीडियम. जो बात वर्बली हो सकती है उसको ईमेल पे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ईमेल पे करने वाली बात है तो आप उसको प्रिसाइज रखें ताकि उससे आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले जो आप इंटेंड करते हैं. Then know your audience. Match your tone and timing to the person you're communicating with. Then हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अपनी टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर और ईमेल्स पे भी कर रहे हैं. So we need to text smart. More workplace information gets communicated because of these mediums. So never text anything too complicated because this is going to help you avoid misunderstandings and misinformation. बहुत एक लंबी ईमेल ना करें अगर आपको एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करनी है. So ये चीज़ इंपॉर्टेंट. मेक योर मीटिंग्स मैटर मोर. बहुत दफा मीटिंग से लोग निकलते हैं, कहते हैं कि इससे बेहतर हम कोई और काम कर लेते हैं. सो Absolutely. हमेशा एक एजेंडा सेट करें, कीप इट एट द स्केड्यूल्ड टाइम. डोंट इनवाइट अननेसेसरी पीपल टू द मीटिंग. जिसकी रिक्वायरमेंट है उनको आप इन्वॉल्व करें, and make sure that every meeting is productive enough to justify that every attendee taking their time out and resources from their workload is appropriate. And always keep it positive because the positivity can never go wrong. जितने भी आप stressed हैं, जितनी भी situation tensed है, conversation difficult है, always put your team first and never make it personal. Keep your focus on the professional and earn a reputation and respect for that. Okay, Javeria, can I add a couple of things here?
Yeah. because we were talking about feedback, and it's very important that I share my 2 cents. There's a cycle of feedback that we usually follow in the education sector. That first, when you're giving feedback to your teachers or your education managers or even to students, you first need to listen to them, right? Yes. So instead of bombarding them with the information or what you think, first listen to them and then rephrase what they say in order to make sure that you've understood them and they are sure that they've been heard and they've been understood. Now, so listening and then rephrasing, and after that asking for solution. What do they think could happen? So we never ask, as managers or as people who are being reported to, we never ask people what do they think could happen. And some really great ideas come when you ask your employees or people working under you, what do you think about it? And then when they share their ideas, they feel important, and then you can share your 2 cents by saying, let's try this. So let's is very important, togetherness is very important. And after you're done sharing your views, if they're different from their views, if they've already communicated the right points and you think that things have been communicated, you don't need to say anything at all. And then at the end, why not telling them that you're with them, offering support? So at the end, what most managers fail to do is that they've given the feedback, they've shared their thoughts, and at the end they fail to say, "I'm with you. Whatever happens, I'll be there." So so they've got your back and you've got their back. It's important to share, right? Very So this well. is the cycle that we in the education sector follow, and it works every time. And another thing that you said, trust and reliability and confidence. It's very important. I wanted to share a research. It was done in 2010, where the relationship between performance and trust was studied. And first what they did was they started giving more money, they started incentivizing the employees in order to see whether or not their performance increases. And they noticed that there was not a significant increase in the performance. But then in the second phase of the research, they started inviting people to the meetings, they started giving them importance, they started asking them to make decisions on their behalf, and then they saw a very significant increase in the performance. So it's a clear indication that if you trust your workforce, if you like them, if you include them in decision making processes, they will work better for you, and the revenues will go up and targets will be achieved. So what do you think? I completely agree with this. Very well Mhm. said. Okay, thank you. Please continue. I wanted to just share because So, this feedback cycle I thought was very important and needed yes, to be shared. it's very important. पता होना चाहिए कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड Mhm. लाइकवाइज आपको भी ये आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे किसी को फीडबैक दे रहे हैं. सो हम Right. बात कर रहे थे सॉल्यूशंस की और स्किल्स की कि हम Yeah. कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम कर सकते हैं. If we talk about 2020 this year, the top most important communication skill is emotional intelligence. Yeah. It's basically the ability to understand and manage your own emotions and others' emotions, to communicate effectively, to relieve the stress of the situation, to overcome Yeah. challenges, and to empathize with others. देखिए एम्पथी सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूज करना होता है, कोई Mhm. मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट को आपने अवॉइड करना होता है, बिकॉज empathy is when you help to consider and respect the point of view of others, because Mhm. everyone is different and important and respected in their own ways. So ये बड़ा ज़रूरी है. और फीडबैक की हम बात कर रहे थे, उसमें एम्पथी बहुत ज़रूरी है when you're giving and receiving feedback, when you're dealing with challenging work relationships, when you're accepting the change to adapt and grow with it. और अगर आपको कोई फेलियर्स या सेटबैक्स आते हैं वर्क प्लेस के अंदर, उन तमाम चीज़ों में आपको एम्पथी बहुत हेल्प करती है. Emotional intelligence is responsible for 58% of the job performance, and 90% of top performers have an above average emotional intelligence. So जितना बेहतर आप अपने Mhm. इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरों को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन से वक्त पे क्या बात कैसे कहनी है, यही Mhm. आर्ट है कम्युनिकेशन का. जितनी Yeah. क्लैरिटी और कोहेजन होगी, आपकी इंफॉर्मेशन लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड, वेल टाइम्ड होगी, कंसिस्टेंट Mhm. वर्क फ्लो होगा, उतने ही चांसेस हैं कि आप कंफ्यूजन को अवॉइड करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन True. को एक पर्पस मिलेगा.
True. हमेशा अपना मैसेज पर्सनलाइज करें. Always set the right tone because it encourages friendliness, a candid conversation. Hmm. एक बात मैं यहाँ पे शेयर करूंगी. राइट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज से राइट कॉन्फिडेंस because with correct information, the right confidence is always important and impactful. Hmm. Confidence is a self belief that you are willing to try to share. So ये वो चीज़ें हैं जो आप आउट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन भी जो हैं आप कॉन्फिडेंटली उनको टेकअप कर सकते हैं उन चैलेंजेस को. इसी तरह से एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है. आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिटी एंड ऑलवेज रीफ्रेज फॉर अंडरस्टैंडिंग. कि मुझे लगा कि आपने ये कहा है तो इज इट राइट, इज इट अप्रोप्रिएट. तो रीफ्रेजिंग से आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यूजुअली हम 60% जो हमारी लिसनिंग है उसमें से हम सिर्फ 20% रिटेन कर पाते हैं. तो ज़्यादा सुने ताकि आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकें. Open mindedness is very important, a flexible approach when you're communicating with the other person because it's a commitment to understand other people's point of view. ये बहुत ज़रूरी है. For Hmm. example, if you disagree with the person you are speaking to, try to reach to a middle ground that benefits both of you. हमेशा Absolutely. अपनी राइट टोन यूज करें बिकॉज वो आपका इमोशन शो करती है. और बहुत दफ़ा बात का मतलब चेंज हो जाता है. सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी राइट टोन वोकल कम्युनिकेशन जो है उसको बेहतर करें. और हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस और प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछें टू बिगिन विद ताकि आप एजम्पशन से बच सकें. अब मैं Hmm. आपको एक स्मार्ट टूल किट देने वाली हूँ जो मैंने खुद भी अपनी वर्क प्लेस में प्रैक्टिस की है कि हम कैसे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं फॉर ग्रोथ एंड टू बिल्ड द ट्रस्ट विद Hmm. योर टीम एंड विद द मैनेजमेंट. और हम मिसकम्युनिकेशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं. Good. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 A's: Hmm. awareness, then accountability, and last but not the least, action. Okay. जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है एक्नॉलेज करना दैट अ मिसकम्युनिकेशन हैज टेकन प्लेस. बिकॉज Hmm. मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही इस वजह से है व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फैक्ट्स एंड क्लैरिटी इन द इंटेंशंस. एंड इट कैन बी रिजॉल्व थ्रू ओपन सेफ एंड ऑनेस्ट टू वे कम्युनिकेशन. इसमें 3 चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि इंटेंशन, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस क्या है. So that is how we are going to be more aware of the situation. Hmm. Always, when faced with the realization that a miscommunication has occurred, we have a tendency to just want to get it Skip it. off, or Hmm. yeah, sweep it under the rug or ignore it, Yeah. that in the hopes कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा. या हम कभी कभी frustration में भी आ जाते हैं. Or there are people who also start bad mouthing about the person, Hmm. which is very very wrong क्योंकि Hmm. उससे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको प्रोडक्टिव रखें. और वी ऑलवेज फाइंड टाइम टू गो सी कॉल और ईमेल द अदर पर्सन एंड सिंपली से दैट आई एम सॉरी दैट आई think that we may have communicated or I may have communicated. So play your part. इसमें Hmm. बहुत ज़रूरी है कि हम challenges और issues को openly और immediately address करें. And we set clear expectations. Knowing what is exactly expected of the employees can help them feel more comfortable and to relieve conflict causing tension because 57% of the employees report not being given clear directions. So ये Hmm. बहुत ज़रूरी है. बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज द कंटेंट which Hmm. you are providing for the audience, that is important. कि उसमें Hmm. पर्पस क्या है, क्या वैल्यू क्रिएट की जा रही है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अकाउंटेबिलिटी है. If you're accountable, if you take responsibility of what you do and what you say, बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं. So always seek to understand and gain clarity before forming any judgment or becoming Hmm. defensive. जाहिर है हम इंसान हैं, judgments हो जाती हैं हमारे से, लेकिन हमें उसको कैसे टैकल करना है ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. People who are experiencing a misunderstanding, they avoid a conflict where both parties could be aware that there is an issue. तो बेहतर ये है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उसको रिजॉल्व किया जाए, दोनों पार्टीज की विलिंगनेस हो, दोनों लोगों की विलिंगनेस हो उसको रिजॉल्व करने में. ऑलवेज एडमिट योर पार्ट इन द मिसकम्युनिकेशन. अगर आपको लगता है कि देर इज नो वे यू मिस हर्ड द communication, still you can swallow your pride and you can be flexible and Hmm. you can say something like, I thought I heard you say, for example, this, but maybe I misunderstood. So take some Hmm. accountability for your role in the problem, because that is going to help you make the other person feel less defensive and to own their part of the problem as well.
सो आप उनको ये दिखाते हैं कि वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली लिसनिंग स्किल्स इसमें बहुत ज़रूरी हैं। डिफरेंट ओपिनियंस एंड आइडियाज कैन लीड टू ग्रेट इनोवेशंस एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्कशंस हेल्दी भी होती हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए। And last but not the least, taking right action at the right time. Ask for and provide great clarity because that is the core of communication. अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड नाउ यू मस्ट ट्राई टू क्लियर इट अप। आप कैसे कर सकते हैं? ओपननेस के साथ एक एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको लिमिट कर सकें और आप रूट कॉज तक पहुंच सकें। सो इसमें स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना आप होंगे एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपना फीडबैक शेयर करेंगे, वो फैक्ट्स शेयर करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, सो आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑलवेज वेरीफाई द इंटेंशंस, listen carefully to how other people respond and move past the misunderstandings, because most importantly you have to decide that how to move forward in a way that avoids similar miscommunications in the future। गलतियों से सीखी हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनसे आपको जो है कॉम्बैट करना है और आपने फिर उनसे सीखना भी है। Always recognize, respect personal differences because they are formed because of the values, beliefs, experiences and culture everyone share। किसी भी बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब एक जो पर्सनालिटी है किसी की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको उसका जो इमेज है उसको प्रोटेक्ट करें। तो कोई भी बात उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है और छोटी छोटी बातों पे अगर फोकस करें तो फिर बड़ी बातें नहीं होती। ये तो वो चीज़ें जो हम प्रोफेशनली कर सकते हैं। एंड इफ अ मिसकम्युनिकेशन stems from a diversity related issue, always try to assess the intent cautiously and demonstrate the respect you address while you are addressing the issue, because ये बहुत ज़रूरी है। फॉरन कंक्लूजन्स पे जंप करने की ज़रूरत नहीं होती। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द अदर पर्सन। ये ऐसे ही है कि जैसे आप सोचें कि अगर आपको किसी ने कभी मिसजज किया हो और कभी किसी का इंटेंट आपके बारे में कुछ और हो एंड दैट वाज रॉन्ग, तो आपने कैसा महसूस किया था। तो एम्पैथी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मिसकम्युनिकेशन को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे सही इंटरप्रिटेशन के साथ कि अगर ये इंटरप्रिटेशन इसकी ये है पॉजिटिवली, तो ऑब्वियसली मिसकम्युनिकेशन नहीं हो पाती। बहुत दफ़ा सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर भी हमें ये एम्पैथी हेल्प करती है टू डील विद इट। सो always try to practice the 3 A's, which are awareness, accountability and action. Accountability and action. Okay, excellent points, and I've written them down. Okay, so I have a question about accountability. And we know that action will only happen if we are all accountable for what we do. So, self accountability, like you mentioned, is very important. But people fail to present themselves for accountability if the top management of or the leader is not self accountable. So, how do you think we can develop a culture of accountability, or what can executives or managers or leaders do so that everybody is comfortable being accountable? So, I've seen in many organizations small things, not major things, very small things, and people when they're held accountable, they take it personally and they think that they're being attacked. So how do you think we can generate this, this culture where everybody feels that he's accountable for what he does and doesn't take it personally? या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़रूरी बात ही यही है कि अगर आपको फीडबैक दिया जाता है या कोई सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपको एक क्रिटिकल फीडबैक मिला है, नेवर टेक इट पर्सनल। बिकॉज वहाँ पे आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, यू ऑलवेज पुट योर टीम फर्स्ट और यू पुट योर प्रोफेशनल कैपेसिटी फर्स्ट, तो उसमें कभी आपको उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। और हमेशा उसको एक फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेडनेस के साथ जो है ना वो टेकअप करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये तो हो गया आपके एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू। एक कॉन्सेप्ट है दैट यू शो हाउ रादर नो हाउ।
इसको आप रोल बहुत सारी मॉडल। चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने लीडर्स को देखते हैं कि वो अकाउंटेबल हैं, वो अकाउंटेबिलिटी को डिस्प्ले करते हैं, दे शो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे डू। ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक राइट टोन और एक कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्दी कल्चर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो एक क्रिएट किया जाए। सो जब वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट टास्क के ऊपर भी जब उनको देखने को मिलती है, तो वो खुद भी उसको फिर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो हमेशा आप जब एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो चीज़ें आप रिफ्लेक्ट करते हैं एज अ लीडर, आपकी टीम जो है वही फिर उन्हीं चीज़ों को फिर रिफ्लेक्ट बैक करती है, उन्हीं चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करती है। कुछ चीज़ें पर्सनली भी इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर एक एक पर्सनालिटी है जो जनरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन द अदर पर्सन। जैसे कि आपने देखा होगा किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक तरफ फ्री राइडर्स होते हैं जो कम काम करते हैं और ज़्यादा अपना अपना आप जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर प्रॉब्ली इंट्रोवर्ट, या वो इतना डिस्कस नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। सो आई थिंक इसको इसको एक शेयर्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे फिर आप दोनों काउंटर पार्ट्स क्रिएट करते हैं। आपकी मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं टू क्रिएट द राइट ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स एंड रिजल्ट्स फॉर द कंपनी। सो ये दोनों के लिए ये बहुत पार्ट एंड पार्सल है। Absolutely. Thank you so much. Excellent points and a lot of learning. Samreen Tariq कह रही हैं good talk. Thank you so much Samreen for joining. Safia कह रही हैं, Safia Jameen, thank you for joining. Will you suggest any book for their skills? So do you have any books that you can recommend, Javeria? There are many books over the internet. मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ट्रेनिंग्स के अंदर लर्न करूँ और मैं आर्टिकल्स ज़्यादा पढूँ और मैं एक्सट्रैक्ट्स जो है वो ज़्यादा पढ़ती हूँ। सो बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जो आप सर्च आउट कर सकते हैं और उनको आप पढ़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। राइट। ब्रायन ट्रेसी की कुछ बुक्स जो हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और उनकी कुछ टॉक्स हैं यूट्यूब के ऊपर, दे आर वेरी इफेक्टिव और उसमें जो Yes. आइडियाज दिए गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो प्रॉब्ली यू कैन गूगल इट एंड you'll find a lot of material. Um, Nusrat Hamdani is very kind. She's saying a really productive session in order to set effective communication mechanism. Thank you so much. She's saying nothing is personal in professional life. If you'll take something personal, then we aren't professionals. Absolutely. That's absolutely correct. Okay, we will conclude it because we are almost at the end of our allocated time and promised time. By the way, I'm so sorry that I didn't mention it in the beginning that we were supposed to start at 8:30, but we started an hour later, 9:30, and we apologize for that. Okay, so the last thing, first of all, let me tell my audiences that Javeria is not only a communication specialist or expert, she's also a speaker, she's also a success coach. So she has a wide range of skills. And probably in the future, inshallah, if she's available, we'll invite her again and we'll talk about something else. So if there's anything else you want to learn from her, or if there's any topic that you want us to talk about, please do share in the comments. So we could invite her again. Okay, so at the end, Javeria, what would you say to conclude this talk? So, what are the main points? Like you shared three A's. So, any other quick tips that you would like to give at the end? So then we can conclude it. Yeah, first of all, thank you so much once again for having me. It was a complete pleasure to be learning and sharing from this platform. And I Likewise. also take complete responsibility that we couldn't start off at the right time. I'm really sorry for that because there was an emergency, and I hope कि हमारा जो ह्यूमन फैक्टर है, एम्पैथी जो है, हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे Absolute. और Absolute. उसको हम वी कैन गेट Yeah. आवर पॉइंट अक्रॉस। सो आई थिंक मुझे कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, जो मैं हमेशा शेयर भी करती हूँ अपने ऑडियंसेस के साथ और अपने को वर्कर्स के साथ, दैट लिसनिंग इज द कोर ऑफ कम्युनिकेशन। Absolutely. यहाँ से वो बात निकलती है जो यहाँ जाती है, और यहाँ पे बात कैसे जाती है जब आप रीडिंग कर रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं, बिकॉज हम किसी ना किसी फॉर्म के अंदर वी आर लिसनिंग, वी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली
intentionally, unintentionally, we are listening on varied information. So ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये प्रायोरिटाइज करें कि विच आर द राइट वर्ड्स और कहाँ पे आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. बहुत दफ़ा बात आपको अल्फाज में कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपके एक्शंस, आपके जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं वो ये हेल्प करते हैं. सो True. कभी कभी वेल टाइम्ड साइलेंसेस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. राइट पॉजेज आई बिलीव आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स अटर्ड. Mm, सो excellent. इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन सी Mm, बात किससे कहनी है और कैसे कहनी है. और हमेशा mm, आप ये कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की कि अगर आप उसकी जगह हों तो आप कैसा महसूस करेंगे. सो व्हेन यू mm, आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यू यू पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज नॉट ओनली टू एम्पैथाइज बट ऑल्सो टू mm, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन यू आर गोइंग टू हैव. सो आई बिलीव कि mm, जितना आप ओपन माइंडेड होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और अच्छे सवाल पूछेंगे, उतना ज़्यादा आप mm, लर्न करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं. और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना कोई बुरी बात नहीं है. हो जाए तो mm, हमेशा यू गेट अप, यू टेक अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर नहीं भी हुआ mm, तो इट्स ओके. आप सिचुएशन के अंदर मीडिएटर की तरह आप हेल्प कर सकते हैं. mm, और जितना आप ऑनेस्ट होंगे, जितना कैंडिड आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतना ज़्यादा लोग आपसे चीज़ें शेयर करना चाहेंगे. आपको एक ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के फैक्टर के ऊपर ज़्यादा आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन महसूस करेंगे. सो आई थिंक mm, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो mm, चीज़ें जो कहते हैं, आप उनको प्रैक्टिस भी करें. अगर आप एक लीडर mm, हैं, आपको जो चीज़ें दूसरों में देखनी हैं, आप उसको खुद डेमोन्स्ट्रेट करें. अगर आप एक एम्प्लॉयी हैं, अगर आप किसी के बॉस होते और आपका एम्प्लॉयी आपके साथ वो करता जो आप खुदा ना खास्ता कर रहे हैं, आप कोई गलत बात कर रहे हैं, कोई गलत बयानी कर रहे हैं, या आपने कहते हैं ना कि यू नो लिटिल लाइज और स्टफ, वाइट लाइज और थिंग्स. सो डोंट एवर डू दैट बिकॉज ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है और इसका हमेशा नुकसान ही होता है. सो absolutely. जितना आप इसको बेहतर तरीके से टैकल Mm. करेंगे उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी. Excellent points to conclude the session. Thank you so much, Javeria. I can't thank you enough for all the precious information that you've shared, and I'll definitely go back and watch it again and note down the things that I missed. Thank you. And the last comment. Let's take the last comment. Nusrat Hamdani carrying absolutely wonderful session I ever watched, start till end. Credit goes to Abdur. Thank you so much. And she's also saying thanks to Javeria Nadeem, of course. So let's conclude it. Thank you so much. We learned a lot about communication at workplace. And this is such a huge topic. And of Yes. course, it cannot be covered in 1 hour, but because we have the limitation of time, so maybe some other day we will resume the discussion and we will talk more about it, if that's fine with you, Javeria. Perfectly. I would love to join you again and the beautiful audience there. Thank you so Yeah, much for having me. Thank you everyone for joining in. yeah. And inshallah आगे भी हम इसको बेहतर लेके चलेंगे. Inshallah. Why not? Thank you so much. Okay. Signing off. Allah Hafiz to everyone. Allah Hafiz, Javeria. Take care. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.